ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، ملتان ملازمین کو 37,000 سے کم اجرت دینے والی کمپنیوں کے مالکان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور مالکان کو زیادہ سے زیادہ جرمانے کے ساتھ جیل بھی بھیجا جائے گا۔ محکمہ لیبر نے عوامی شکایات پر کم اجرت دینے والی فیکٹریوں کے چالان شروع کر کے فیکٹریوں کے مالکان کو 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے عائد کر دیے۔ مزید جانتے ہیں ذیشان مرتضیٰ سے۔ جی ذیشان بتائے گا۔ جی، اگر بات کی جائے لیبر ڈپارٹمنٹ کی تو ملتان میں بھی لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے ایکشن ہو گئی ہے اور جو مالکان اپنے مزدوروں کو 37,000 سے کم تنخواہیں دے رہے ہیں ان کے خلاف بھرپور ایکشن کیا جا رہا ہے۔ ان فیکٹریوں کو ان کے مالکان کو چالان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ڈائریکٹر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، مزید بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ اپنا ورک کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ گورنمنٹ نے 37,000 اجرت ماہانہ مقرر کی ہے اور اس پہ عمل درآمد کی سختی سے ہدایت کی ہے، اور چیف منسٹر پنجاب اور منسٹر لیبر کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ اس سلسلے میں کسی کو ٹالریٹ نہ کیا جائے۔ جو بھی ادارہ تجارتی یا صنعتی ادارہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا اس کے خلاف قانون کے مطابق ایکشن لیا جائے۔ تو اس سلسلے میں پچھلے 3-4 ماہ کے اندر سینکڑوں، درجنوں نہیں سینکڑوں اداروں کو، جو صنعتی ادارے ہیں یا تجارتی ادارے ہیں جو 37,000 روپے ماہانہ ادا نہیں کر رہے، ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تمام فیکٹری مالکان یا جتنے بھی آنرز ہیں ان کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے اور کئیوں کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا کہ جو بیسک مزدوروں کی تنخواہ 37,000 مہیا نہیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہے، کچھ کے خلاف کیسز بھی ہوئے ہیں اور ان کا یہ مشن جو ہے وہ جاری ہے۔ میرپور خاص میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے چکی کے آٹے کے نرخ مقرر کر دیے۔ چکی ایسوسی ایشن کی جانب سے مقررہ نرخ پر آٹا فروخت کرنا مشکل قرار دی دیا۔ وزیر کیا صورتحال ہے معلوم کرتے اپنے نمائندے محمد شہزاد خان سے۔ جی شہزاد۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ کی جانب سے میرپور خاص ضلع کے اندر چکی جو مالکان ہیں ان کو آٹے کا نرخ جو ہے کہ مقرر کر دیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے چکی ایسوسی ایشن کے رہنما ڈی سی صاحبان یا گورنمنٹ سندھ نے جو ہے نا وہ ہمیں آٹے کا ریٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے 80 روپے کلو آٹا چلانا ہے، تو 80 روپے چلانے سے ہمیں صرف 1 سے 1.5 روپیہ پرافٹ مل رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی جب 2200 روپے من گندم تھی تو بھی 80 روپے کا ریٹ تھا، 2400 روپے گندم ہوئی تو بھی 80 روپے، آج 2600 روپے ہمیں گندم مل رہی ہے تو بھی ریٹ 80 روپے۔ تو ایسا ظلم نہ کیا جائے، تو یہاں ہمارا بچے بھوکے مر رہے ہوں، ہم ایسا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں وہ ریٹ دے، کم سے کم حیدرآباد کا ریٹ جو ہے وہ 86 روپے ہے، کراچی کا 90 روپے ہے، تو ہم سے میرپور خاص والوں کو کم سے کم 86 روپے میں تو رکھا جائے تو ہم بھی اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں اور غریب آدمی کو بھی اچھا اور معیاری آٹا مل سکے۔ ہماری یہ کہ نہ گورنمنٹ پرچیز کر رہی ہے گندم، نہ ہمیں ڈیلیور کر رہی ہے۔ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے تو کم سے کم یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ 86 روپے کا ریٹ دیا جائے تو ہم ایزیلی غریب آدمی کو اچھا آٹا دے سکتے ہیں۔ یہ آپ نے سنا کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت سندھ اور اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ مخصوص جو ہے کہ آٹے کے جو نرخ ہے اس کو مختص کیا جائے تاکہ جو ہے کہ ہمیں جو مڈل مین سے جو گندم خریدنی پڑ رہی ہے مہنگے داموں، ہمیں بھی جو ہے کہ 2 سے 4 روپے فی کلو آٹے کے اوپر منافع مل سکے۔ جی، فیصل آباد میں موسم کے تبدیل ہونے کے باوجود گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی۔ 16 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ سے گھریلو صارفین کے ساتھ اب کاروباری طبقہ بھی مشکلات کا شکار ہے۔ سوالے سے پوچھتے ہیں اپنے نمائندے سلمان سامی سے۔ جی سلمان بتائے گا۔ ہاں جی، فیصل آباد کا موسم تو تبدیل ہو گیا لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی۔ اب گھریلو صارفین کے ساتھ کاروباری طبقہ بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے انتہائی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں ایک شہری موجود ہے، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی، موسم بدل گیا، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا حل نہیں ہوا، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح گیس کے موسم تو کافی چینج ہو چکا ہے لیکن گرمی کے باوجود یعنی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تو تقریباً 15-16 گھنٹے دہلی کا یہ معمول بن چکا ہے۔ جب دن کے وقت آتی ہے تو اس میں پریشر بہت کم ہوتا ہے، تو بل تو گیس تو آ نہیں رہی لیکن بل اتنے ہی آ رہے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جس طرح کے بجلی کے بلوں میں انہوں نے کمی کی ہے، گیس کے بلوں میں بھی کمی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف ہو۔ ہاں جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ 16 سے زائد کی گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں، اور اگر گیس آتی بھی ہے تو اس کا پریشر بھی مکمل نہیں ہوتا، لیکن گیس کے بل وہ اسی طرح ہی آ رہے ہیں۔ اور شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مطالبہ ہے کہ اس گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے اور بلوں میں بھی ریلیف فراہم کیا جائے۔ جی، ملک کے دیگر شہروں کی طرح گوجرانوالہ میں بھی مسیحی برادری نے ایسٹر ڈے جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں گوجرانوالہ سے ہمارے بیورو چیف حاجی ظفر اللہ چودھری۔ جی حاجی بتائے گا۔
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी जो है आज मसीही बरादरी अपना ईस्टर बड़े जोश व जज्बे और मजहबी तरीके से मना रही है। बिल्कुल तमाम जो चर्च हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, तमाम खवातीन बच्चे बड़े जो है अपनी इबादत करते भी नज़र आते हैं और बिल्कुल बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक निजी चर्च में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है मसीही बरादरी जो है बिल्कुल यहाँ पर इकट्ठी है और अपनी इबादत कर रही है और बिल्कुल खुशियाँ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पास मसीही बरादरी के कुछ अफराद मौजूद हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। सर आप बताइएगा कि आज आपका ईस्टर है, आप किस तरह मना रहे हैं और क्या कहेंगे। जी हम बड़ी जोशो और खुशी के साथ मना रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हैं और हम भी बड़े खुश हैं। खुदावंद यीशु मसीह का बड़ा फजल है, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं। हम अपने CPO साहब का, पुलिस डिपार्टमेंट का, रेस्क्यू 1122 वाले और इन सब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अच्छे इंतजाम किए हैं। बरकैफ हम बच्चे और सारे बहुत खुश हैं से और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि उसने ये दिन हमें दिखाया कि हम ये जोश व खुशी और जज्बे के साथ मना सके। हम सब फैमिली के साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल, आपने यहाँ मसीह बरात के अफराद की भी बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल जोश और जज्बे के साथ मजहबी तरीके से हम अपने ईस्टर को मना रहे हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो CPO गुजरांवाला की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन अगर बात की जाए यहाँ पर जो मसीह बरादरी जितने मकामात पर अपने ईस्टर को मना रही है, तकरीबन 800-850 के करीब जो है मकामात हैं यहाँ पर जो मसीह बरादरी आज के दिन को मना रही है और बिल्कुल सिक्योरिटी के और इसके अलावा जहाँ पर रेस्क्यू 1122 और इसके अलावा दीगर जो तमाम जो यहाँ पर इदारे हैं वो भी अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जी उसूल में भी मुल्क भर की तरह पोलियो से बचाव मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में मुनक्किद हुई, जहां डिप्टी कमिश्नर इमरान ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ टीम के हमरा बाज़ाब्ता तौर पर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ कसूर सजाद अंसारी की रिपोर्ट में देखिए। पोलियो एक मूजी मर्ज है जिससे बचाव के लिए कसूर बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ, जहां डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने बाज़ाब्ता तौर पर नन्हे बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पोलियो की इफ्तिताही तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैसल इकबाल समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने पैगाम देते हुए कहा कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। पोलियो से बचाव का सिर्फ एक कतरा बच्चों का महफूज मुस्तकबिल यकीनी बना सकता है। हमारी टीम्स जा रही हैं, वो एक नेशनल ड्यूटी पे निकली हुई हैं, कौमी मदद कर रही हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रही हैं। उनको वेलकम करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट वेव है, तो जितना उनके साथ कोऑपरेट करेंगे उतनी हमारी कवरेज बढ़ेगी। हमारी कवरेज बढ़ेगी तो हमारे बच्चे महफूज होंगे और इन्हीं बच्चों की खातिर हम सारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो मिल के हमने इसको सक्सेसफुल बनाना है और इस दफा पोलियो की कोई भी इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं आना चाहिए हमारी साइड से। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैसल इकबाल ने कहा कि पोलियो के खात्मे के लिए महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाएंगी। पोलियो जैसे मूजी मर्ज का खात्मा सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब हर बच्चा इस मुहिम का हिस्सा बने। 5 रोजा पोलियो मुहिम में 7,66,393 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जिला भर में 2990 टीमें तश्कील दी गई हैं। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को हिफाजती कतरे जरूर पिलाएं ताकि मासूम बच्चे इस मोहलिक मर्ज से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर। चैनल 5 पर तजावजात के खिलाफ खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। चूनिया के रोसा टब्बा में कब्जा माफिया से जौहर वाली जगह वागजार करा ली। वाजे रहे हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे भर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। चैनल 5 बना बेसहारा लोगों की आवाज़। गुज़श्ता दिनों चैनल 5 न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि चूनिया के नवाही गांव रोसा टब्बा नंबर 1 में कब्जा माफिया ने गांव के जौहर पर कब्जा करके पूरे गांव का सीवरेज सिस्टम नाकारा बना रखा है। चैनल 5 पर खबर नशर होते ही चूनिया की इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया तलहा अनवर ने अपनी टीम के हमरा ऑपरेशन करके जौहर वाली जगह गुजार करवाते हुए मुतअद्दिद दुकानें, गैर कानूनी तामीर शुदा घरों को मस्मार कर दिया। पाकपतन में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। महकमा सेहत की टीमें 5 रोजा मुहिम में 3,52,000 से ज्यादा कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएगी। तफसीलात तारिक सज्जाद चिश्ती की रिपोर्ट में देखिए।
5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान जिला पाकपतन के 3,92,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वालिदैन ने अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। ये कैंपेन 21 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक कंटिन्यू रहेगी। इसमें हम अपने पाकपतन के 3,92,000 बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाएंगे और हमारी इसमें 3500 के करीब जो कि हेल्थ के और पॉपुलेशन और दूसरे अलाइड डिपार्टमेंट के वर्कर्स है, ऑफिसर्स है, वो इस मुहिम का पार्ट होंगे। महकमा सेहत की टीमें शहरी और दही इलाकों में पैदल मुसाफत तय करके बच्चों को कतरे पिला रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं ताकि मुस्तकिल अपाहिजी से उनको बचाया जा सके। DSQ में भी पोलियो के कतरे पिलाने के लिए टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। इंशाल्लाह ये मुहिम 21 से 25 तक जारी रहेगी। अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। शहरी महकमा सेहत की टीमों से ताउन करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। पोलियो मुहिम का मकसद बच्चों को माजूरी से बचाना है। वालिदैन को चाहिए कि कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। मंडी बहाउद्दीन में किसान गंदम के रेट के मामले पर हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। काश्तकारों ने डीसी ऑफिस के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी करके एहतजाजी मुजाहरा किया। आपको बताएं, मंडी बहाउद्दीन में किसानों ने डीसी ऑफिस के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हुकूमत का अलामती जनाजा भी उठा रखा था। किसान रहनुमाओं का कहना था कि गंदम का मुनासिब रेट न मिलने की वजह से काश्तकार तबका शदीद परेशानी से दो चार है। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से किसान गंदम की काश्त के अखराजात भी पूरे नहीं कर पा रहा। मुजाहिरीन ने गंदम का कम अज कम रेट 4,000 रुपये फी मन करने का मुतालबा कर दिया। मुल्क भर की तरह कानपुर में भी 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह का आगाज हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कानपुर ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाकर बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कानपुर से सलीम मुगल। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहने वाली 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज DDH ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अली समीर और DDHO डॉक्टर शफकत खान कुरैशी ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाकर कर दिया। पोलियो कैंपेन तहसील खानपुर में भी पूरे पंजाब की तरह स्टार्ट हो रही है, जो कि 21 से 25 अप्रैल तक इंशाल्लाह जारी रहेगी। पूरे जोर शोर के साथ और तमाम टीमें मुतहरिक रहेंगी। ये तकरीबन 899 टीम्स हैं जो तहसील खानपुर में इंशाल्लाह काम करेंगी। मेरी खानपुर के अवाम से रिक्वेस्ट है, ख़ास करके वालिदैन से, कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं और हमारी हेल्थ टीमों के साथ ताउन करें ताकि हम इस मूजी मर्द के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल कर सकें और अपने मुल्क को और कौम को पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। पोलियो मुहिम 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जारी रहेगी, जिसमें 2,26,192 टारगेट बचे हैं। इन्होंने आवाम से जो ये दरख्वास्त की है कि वालिदैन चाहिए कि अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो की 2 बूंद लाजमी पिलाएं ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। सरगोदा में PHA के ज़ेर एहतमाम सालाना फ्लोरा फेस्टिवल का आगाज हो गया। DG PHA चौधरी मोहम्मद अरशद ने फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। गजा के मजलूम मुसलमानों ने इज़हार यकजहती के तौर पर फेस्टिवल का दौरानिया महदूद कर दिया गया है। मज़ीद देखते हैं सैयद अशर नवीद की इस रिपोर्ट में। आर्ट्स कौंसिल सरगोदा में मुनक्किदा गावा एंड ऑरेंज फेस्टिवल में माल्टे और अमरूद की मुख्तलिफ अकसाम की नुमाइश की गई, जहाँ ज़राअत से मुताल्लिक जदीद आलात और सनती मसनूआत भी पेश की गई। फेस्टिवल में सरगोदा के चारों अजला समेत पंजाब भर से मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। शहरी अपने अहले खाना के हमरा आते और पंजाब की खूबसूरत सकाफत के रंगों से महजूज होते रहे। बेसिकली ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है TDCP की तरफ से, ताकि गावा और जो हमारे ऑरेंजेस जो हमारी लोकल फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा है और मैं आज लाहौर से आई हूँ यहाँ पे सिर्फ गावा और ऑरेंज फेस्टिवल के लिए। सरगोदा किन्नू की वजह से मशहूर है। यहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज थी, गावा भी था, ऑरेंज भी थे और मुझे बहुत मज़ा आया। यहाँ पर बहुत ही अच्छा फेस्टिवल था। हमने यहाँ पे ऑरेंजेस और कीवी और अमरूद वगैरह की बहुत अच्छी इकसाम देखी। पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से जारी इस फेस्टिवल में अवामी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब की जानिब से इस सनती नुमाइश का इनकाद खुश आइंद है। ये मेले ठेले पंजाब की सकाफत का हिस्सा हैं और इन्हें जारी रहना चाहिए।
कैमरामैन सागर आरिफ के साथ सैयद अशर नवीद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, चैनल 5 न्यूज़, सरगोदा। रानीपुर में भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से दरिया सिंध से 6 केनाल्स निकालने के खिलाफ एहतजाज और शटरबंद हड़ताल की गई। रानीपुर में शहर के तमाम कारोबारी मार्केट्स, मेन शाही बाजार, रेशम गली, किराना मर्चेंट समेत तमाम छोटे बड़े मराकज़ बंद रहे। हड़ताल के बाद शहर के बाजारों और आम सड़कों पर वीरानी रही। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि दरिया से केनाल निकालना हमारी ज़रई ज़मीनें बंजर बन जाएंगी, मकामी ज़राअत मुकम्मल तबाह हो जाएगी। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी गंदम की कटाई का आगाज हो गया। किसानों की सुनहरी बालियों की कटाई के मनासिर हर सू नजर आ रहे हैं। गंदम की कटाई बड़ी मशीनरी से की जा रही है। गंदम के फरोख्त में किसानों को दुश्वारी का सामना है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं खानेवाल से अरशद ऐवान की इस रिपोर्ट में। कहते हैं गर्मी में किसान खुशहाल होता है। हर सू सुनहरी बालियों की कटाई पहाड़ नुमा मशीनरी की मदद से दिखाई देती है। गंदम तो कट गई मगर किसान नाला नजर आ रहे हैं। मैंने 14 एकड़ गंदम लगाई हुई है। गंदम का रेट नहीं है, 2100 से 2200 तक गंदम का फरोख्त हो रही है। गवर्नमेंट ने 2700 रेट निकाला है। खाद के बड़े अखराजात है, स्प्रे के बड़े अखराजात है, खर्चे नहीं पूरे होते। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है हमें जो है हमारा मुआवजा मिले। गंदम काश्त की थी, इस दफ़ा उसका पानी हमें नहीं मिला और हमने जो है ट्यूबवेल वगैरह चला के जो है न गंदम तैयार की है और अभी उसकी कटाई शुरू हो चुकी है। हमारे पास जो है न जो गवर्नमेंट इसका रेट फिक्स कर दे तो हमें उसके लिए कुछ बेहतरी हो जाएगी। काश्तकारों का कहना है इस साल गंदम की पैदावार में इजाफे की तवक्को है, जो मुल्क की ग़िज़ाइयत ज़रूरियात पूरी करने में मददगार साबित होगी। हुकूमत अगर मुनासिब मुआवजा दे तो किसान खुशहाल होगा। अरशद अवान, 5 न्यूज़, खानेवाल। DPO जंग कैप्टन बिलाल इफ्तिखार कियानी की जानिब से थाना शोकोट सिटी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO जंग ने शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकाम जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद शहबाज अपनी इस रिपोर्ट में। थाना शोरकोट सिटी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिलाल इफ्तिखार कियानी की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO जंग ने मौके पर मौजूद पुलिस अफसरान को शहरियों के मसाइल के फौरी हल और मुअस्सर हल के लिए हिदायत जारी की। उन्होंने वाज़े किया कि आवाम की शिकायत को नज़रअंदाज करना नाकाबिले बर्दाश्त है और इस हवाले से किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी के दौरान शहरियों की शिकायत पर सब इंस्पेक्टर अजहर हुसैन को अख्तियारात से तजावुज़ करने पर फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। DPO ने इस मौके पर कहा कि कानून से बालातर कोई नहीं और महकमा पुलिस में अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DPO जंग ने पुलिस अफसरान को हिदायत की कि वो औरतों और बच्चों के खिलाफ जराइम के इंसदाद और मंशियात के खात्मे के लिए खसूसी इक़दामात करे और इनके मामलात में गफलत हरगिज़ न बरती जाए। जो है तीनों थानों के जो है साइलिन इधर आए हैं, बरियाम के भी आए हैं, कैंट के भी आए हैं और सिटी के भी आए हैं, तो उनके तमाम मसाइल सुने। मेनली मसाइल लोगों के रिकवरी से रिलेटेड थे, प्लस लोगों के कुछ ज़मीन के मसाइल वगैरह थे, तो वो मैंने बड़े जो है क्लोजली सुने और इंशाल्लाह उनको हल करने के लिए SDPO और तमाम SHOs को हदायत भी की। आखिर में DPO जंग कैप्टन बिलाल इफ्तिखार कियानी ने इस अज़म का इजहार किया कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए इक़दामात का सिलसिला मुसलसल जारी रखा जाएगा ताकि अवाम को मौसर फौरी और मुनसिफाना पुलिस सर्विस फराहम की जा सके। खुली कचहरी के बाद DPO जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी ने शोरकोट सिटी में अकरम शहीद चौकी का इफ्तिताह भी किया और कहा कि जराइम के तदारक के लिए मजीद मौसर इक़दामात अमल में लाए जा रहे हैं। कैमरामैन अजान शहजाद के साथ मोहम्मद शहबाज, चैनल 5 न्यूज़, शोरकोट। लाहौर में पैरामेडिकल स्टाफ पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ सरगोदा में भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। DHQ टीचिंग अस्पताल सरगोदा में YDA और पैरामेडिकल स्टाफ की अपील पर जज़वी हड़ताल की गई। सरगोदा में जज़वी हड़ताल के बायस अस्पताल के OPD में बाज़ डॉक्टर्स अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद डॉक्टर्स और अमले ने हड़ताल में शिरकत की है। अस्पताल MS के मुताबिक मरीजों का चेकअप जारी है और उन्हें अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। बिहाड़ी में मुमकिन मानसून की बारिशों सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ने महकमा बल्दिया में रेस्क्यू 1122 का दौरा किया। बिहाड़ी में असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कंवल ने मुख्तलिफ मकामात रेस्क्यू 1122 बल्दिया के दौरे में मशीनरी, रिलीफ कैंप और आलात का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि इंतजाम का जायजा लेने का मकसद ये था कि मुमकिन सैलाब की सूरत हाल मानसून के मौसम के आगाज से कबल ही मशीनरी का जायजा लिया जा सके। दरिया सिंध से 6 मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ कश्मीर में वकला का धरना दूसरे रोज भी जारी है। आपको बताया वकला बरादरी ने कल दोपहर को डेरा मोड़ के मकाम पर धरना दिया था। धरने के बाद
सिंध और पंजाब की कल से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। दादू में बिजली की तवील लोड शेडिंग, जले हुए ट्रांसफार्मर की मरम्मत न होने और बिलों पर इजाफी डिडक्शन से शहरी और कारोबारी अफराद परेशानी में मुब्तला हो गए। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के ऐलान पर ताजिरों ने जिले में स्पैको हुकाम के नाइंसाफियों के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुश्क। देखें, दादू में बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जहाँ पर शहरी हजरात जो परेशानी का सामना करने पर मजबूर हैं, वहाँ पर कारोबारी हजरात भी जो है उनके कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू शहर के स्टेशन रोड के मकाम पर। मैं आपको बताऊँ कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के सिलसिले में अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की कॉल पर जो है मुख्तलिफ व्यापारी तंजीमों ने जो है एक हंगामी इजलास मुनक्कद किया गया है। व्यापारी से बात करते हैं, भाई क्या फ़ैसले इसमें किए गए हैं? और मुतफ़क़ा फ़ैसला ये हुए मीटिंग में कि 6 कलाक हमारे लोड शेडिंग की जाए और 24 घंटों में हमारे जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं वो ट्रांसफार्मर रिपेयर करके हमारे को जो वो लगा के दें, और प्लस में जो डिडक्शन बिल इजाफी लगा रहे हैं शहरियों के और दुकानदारों को, उनको भी फुल फौरा ख़त्म किया जाए। गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है 18 से 20 घंटे। हमारा यही मुतालबा है कि 6 से 8 घंटे की जो एलानिया लोड शेडिंग है उसके मुताबिक अमल किया जाए। लोड शेडिंग जो हद से ज़्यादा हो रही है उसमें तकरीबन 24 घंटे में 2 से 3 घंटे लाइट है ही नहीं। हमारे पूरे कारोबार तबाह हो चुके हैं। रात को घर पे लाइट नहीं है कि हम आराम कर सकें। तो हमारा मुतालबा यही है कि पहले तो आप इस किबले को आप अपना दुरुस्त करें, अगर नहीं करेंगे तो मंगल के दिन हमारे पूरे जो अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के लोग हैं सारे इकट्ठे होंगे, सारी तहसीलें इकट्ठी होंगी और सब हम मिल के एक फ़ैसला देंगे जिसमें आप लोगों की नौकरियां भी जा सकते हैं, आप लोग यहाँ से दादू से भी जा सकते हैं। बिल्कुल, आपने व्यापारी तंजीमों की बात सुनी। उनका कहना है कि जो मंगल के रोज़ तक जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है जो ख़त्म ना हो सका, और जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो जले हुए ट्रांसफार्मर है वो भी जो तब्दील ना हो सके, तो उसके खिलाफ जो है ज़िले भर के जो व्यापारी तंजीमों हैं वो उनकी जानिब से सबको हुकाम के खिलाफ जो एहतजाज किया जाएगा।